Dear students, I am Arvind Upadhyay, Associate Professor in Department of Computer Science Engineering. I teach operating system, and today we are going to learn CPU scheduling. This is very important topic in terms of any placement interviews, competitive exam like GATE, NET, etc. So first we have to understand, in previous lectures we studied degree of multiprogramming. Degree of multiprogramming is to getting more and more processes in the ready queue. So these are the various states of process. This is ready queue, this is running queue. So when we insert more and more process into the ready queue, we can optimize the CPU utilization. Like suppose there are P1, P2, P3, P4 and P5. There are 5 processes available in the ready queue. So by any criteria we can select any process to execute on running queue, means to execute on CPU. So CPU utilization can be maximized. So various algorithms are first come, first serve, shortest job first, shortest remaining time first, round robin scheduling, and last one is priority scheduling. These are the very important topic regarding university exams, as I already told. First come, first serve. We can categorize these algorithms into 2 categories. One is preemptive scheduling and another one is non-preemptive scheduling. In non-preemptive scheduling, what happens? Suppose these are the states of ready queue and this is running queue, right? So once a process is allocated on the running queue, means allocated on the CPU, it cannot release until it completes its execution. मतलब एक बार जब एक प्रोसेस को आपने किसी प्रोसेस CPU को अलोकेट कर दिया तो उसके बाद वो रिलीज नहीं होती जब तक उसका कंप्लीशन टाइम पूरा ना हो, या फिर उसका सेकंड जब नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होगा कि जब भी एक कोई प्रोसेस रेडी क्यू को अलोकेट होगी यानी सीपीयू को अलोकेट होगा तो उस समय अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर हम इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं. प्रीएम्प्ट कर सकते हैं मतलब क्या, वो स्विच होकर रेडी क्यू से वापस रनिंग क्यू में आएगी. ये कब किन किन केसेस में होता है? सपोज जैसे मैं यहाँ पर अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब हमारे यहाँ पर कोई भी गेस्ट आया है तो उस समय अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो मुझे अपना लेक्चर को सस्पेंड करके गेस्ट को एंटरटेन करना पड़ेगा. सिमिलरली यह कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक प्रोसेस है वो यहाँ पर अलोकेट हो रही है, सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस केस में यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन चलता रहेगा और वो बाकी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ गई तो वहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगी. दूसरा एक केस हो सकता है कि अगर ऐसा कभी हो कि जिसका बस टाइम, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, अगर वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होता रहेगा तो उस केस में जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है या जिनका बस टाइम कम है वो वेट करती रहेगी. तो हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे ये अलग अलग एल्गोरिथम है. हम वन बाय वन अलग अलग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. द सिलेक्शन criteria for first come first serve is arrival time. So we have to understand the various basic fundamental terminology regarding all this algorithm. First one is arrival time, second one is burst time, third one is completion time, fourth one is turn around time, fifth one is waiting time, and sixth one is response time. So what is arrival time? Arrival time is a point of time. Means suppose I am suffering from fever, so I have to go to doctor's clinic. Let understand by this analogy. Suppose I went to doctor clinic at 7 p.m. right?
सो व्हाट 7 PM पे जाने के बाद क्या होगा कि सपोज मेरा जो टर्न है डॉक्टर के चेंबर में जाने के लिए, वो 7:40 पर मुझे डॉक्टर के चेंबर में जाने को परमिशन मिला। वहाँ पर जब डॉक्टर के चेंबर में मैं गया तो वहाँ जाने के बाद मुझे सर्विस टाइम पर जो उन्होंने डॉक्टर ने एग्जामिन किया उसके लिए 15 मिनट लिए। तो 7:40 से 15 मिनट्स इज़ 7:55 PM। 7:55 पर मैं डॉक्टर के चेंबर से बाहर निकला, मतलब मुझे सर्विस मिल गई। सो दिस टर्मिनोलॉजी कैन बी अंडरस्टैंड बाय दिस एनोलॉजी। व्हाट इज अराइवल टाइम? सो 7 PM विल बी द अराइवल टाइम। व्हाट इज बस टाइम? सो 15 टाइम जब मुझे उस डॉक्टर के थ्रू सर्विसेज मिली एग्जामिनेट करने के लिए, तो जो 15 मिनट थे वो मुझे बस टाइम होगा। बस टाइम इज अ ड्यूरेशन। कब यहाँ पर ड्यूरेशन कैसे काउंट होगा? 7:55 माइनस 7:40, सो 15 इज द बस टाइम फॉर checkup. Completion time, at which time I completed my services. So in this case 7:55 is the time when I completed my services, right? Turnaround time, turnaround time is the total time. यहाँ पर अब बात करें हम टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम क्या है? मैं डॉक्टर के चेंबर डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंचा 7 PM पर, 7:40 तक मैंने वेट किया, 7:55 पर मुझे सर्विस मिली। सो टोटल टाइम क्या है आपका? 7:55 माइनस 7, so total time is called turnaround time. This is extremely important concept regarding calculation of CPU scheduling numericals. Next one is waiting time. वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? सो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या लिखते हैं उसमें? आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है आपका? 7:55, अराइवल टाइम है आपका 7, सो दिस विल बी द टोटल टाइम और टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट वन इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम how will calculate? So total around turn around time, so total time minus bus time, जिस समय आपको सर्विस मिल रही थी, so this time will is waiting time. Like in this case बस टाइम जो आपका है वो 15 मिनट्स का है, फ्रॉम 7:40 टू 7:55। सो फ्रॉम 7 टू 7:40 क्या करना रहा था? मुझे वेट करना रहा था। सो ये वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम आपका 7:55 माइनस 7 इज द 55 मिनट इज द टर्न अराउंड टाइम। तो 55 माइनस बस टाइम इज 15 मिनट्स, तो 55 माइनस 15, 55 माइनस 50 इज 40 इज द वेटिंग टाइम। क्लियरली सीन बाय दिस एग्जाम्पल कि जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक पे गया था तब मुझे 7 से 7:40 तक वेट करना रहा था, तो वेटिंग टाइम जो है आपका वो 40 मिनट का। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? जब भी कोई प्रोसेस आती है तो उस प्रोसेस को पहली बार जब सीपीयू रिस्पॉन्स देता है उस टाइम से लेके फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। जब आप पहली बार सिस्टम में इंटर हुए से लेके आपको पहला रिस्पॉन्स मिला था, सो दिस टाइम इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। These are the very fundamental technology to understand or calculate various CPU scheduling algorithms. Let's see one by one. First one is first come first serve. So this is the question. First attribute shows is the process number or process ID. Second attribute shows arrival time, we already seen, and third one is bus time, right? So how can we calculate? We have to find out the total turnaround time or average turnaround time and average waiting time regarding this numerical, right? So first we have to draw Gantt chart. Gantt chart is what? Gantt chart is what? Gantt chart is to pictorial representation of any activity. So we calculated by we draw by this Gantt chart. So simulation start from 0. So at 0 time what will happen? Does any process arrives from within this arrival time?
हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस का अराइवल नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, क्या उसके पास कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है। कब तक नहीं है? 1 टाइम तक। तो 0 से लेके 1 टाइम यूनिट तक क्या होगा, एक आइडियल टाइम रहेगा, उस समय सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। जब अराइवल हुआ पहली बार तब कब हुआ, फर्स्ट प्रोसेस है उसका अराइवल हुआ 1 टाइम यूनिट पर, राइट। तो इसका हमने जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है वो उसका अराइवल टाइम के बेसिस पर है। तो अराइवल टाइम जो है इसका 1 पर है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। कब तक करना है? जब तक उसका बस टाइम नहीं हो कंप्लीट हो जाता। तो बस टाइम क्या है इसका? 4 टाइम यूनिट। तो अगर हमने 1 पर स्टार्ट किया है तो 1 + 4 यानी 5 टाइम यूनिट पर ये एंड होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का एग्जांपल है। नॉन प्रीएम्पशन में अगर प्रोसेस एक बार किसी सीपीयू को अलोकेट हुई तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा जब तक वो टर्मिनेट ना हो जाए या फिर टर्मिनेट ना हो जाए। तो आपका क्या हुआ यहाँ पर 1 से लेके 5 तक का आपका इसका रिक्वायरमेंट रहा। नाउ जब 5 टाइम यूनिट तक सिस्टम में क्या क्या इन हुआ, आपकी जो प्रोसेस है P2 आ चुकी है, P3 आ चुकी है, P4 आई है और P5 भी आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले कौन आया था? अराइवल टाइम के हिसाब से हम देखें तो P2 और P3 आया था सिस्टम में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपके पास 2 ऐसी प्रोसेस है जिनका अराइवल टाइम सेम है। अगर अराइवल टाइम सेम है तो हमको क्या करना होगा, हमको एक डिसाइडिंग क्राइटेरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन दोनों में से पहले एग्जीक्यूट कौन होगा। तो अगर कभी ऐसा होता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि जिसका प्रोसेस आईडी मिनिमम होगा उस प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर कभी टाई केस होगा तो उस केस में अराइवल टाइम में अगर टाई है जो कि आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस आईडी कम है वो आपको लेना पड़ेगा। तो इस केस में प्रोसेस आईडी किसका कम है? P2 का कम है। तो हम इस P2 को शेड्यूल करने के सिलेक्ट करेंगे, राइट। इसका बस टाइम कितना है? 3 टाइम यूनिट। तो 3 टाइम यूनिट कितना होगा? अगर 5 पे स्टार्ट हुआ तो एंड किस पर होगा? 8 पर होगा, राइट। दिस वन कंप्लीटेड, दिस कंप्लीटेड, राइट। नेक्स्ट वन इज P3। P3 भी 2 पर आया था, तो अब हम P3 को शेड्यूल करेंगे। P3 का बस टाइम कितना है? 1 टाइम यूनिट। तो अगर वो 8 से स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? वो 9 पर एंड होगा, 9 पर एंड होगा। P3 कंप्लीटेड। नाउ P4 का जो अराइवल टाइम है उसके बाद है, तो हम P4 को शेड्यूल करेंगे। आपने P4 को शेड्यूल किया। P4 का जो बस टाइम है वो कितना है? 2 टाइम यूनिट। अगर वो 9 पर स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? 11 पर एंड होगा। सिमिलरली P5 जो है उसका जो बस टाइम है वो कितना है? 5। तो आपने P5 को शेड्यूल किया। अगर 11 पे अराइवल है और उसका बस टाइम 5 है तो एंड कब होगा? 16 पर एंड होगा। सो इन दिस वे ऑल प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा तो 16 टाइम यूनिट लगे, राइट। अब हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए अलग अलग पैरामीटर जो हमने फंडामेंटल देखा वहां से इसको फाइंड आउट करना रहेगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कंप्लीशन टाइम। Completion time. So by viewing this Gantt chart, the completion time of P1 process is 5. P1 कब complete हुआ? 5 टाइम यूनिट पर। So we will write 5 in this column. P2 का completion कब हुआ? 8 टाइम यूनिट पर। P3 का completion कब हुआ? 9 टाइम यूनिट पर। Similarly P4 11 टाइम यूनिट and P5 is 16 टाइम यूनिट। So we already study how we calculate turnaround time. So turnaround time is completion time minus arrival time. So we calculate turnaround time. Turnaround time is completion time minus arrival time. So 5 minus 1 is 4, 8 minus 2 is 6, 9 minus 2 is 7, 11 minus 3 is 8, and 16 minus 4 is 12. This is the turnaround time of individual process, but we have to calculate average turnaround time. So how we'll calculate average turnaround time? By adding all this turnaround time and divided by the number of processes. How many processes are there? 1, 2, 3, 4 and 5. So by adding this all turnaround time of individual process, 6 plus 4 10, 10 plus 7 17, 17 plus 8 25, plus 2 27 and 10 37.
So average turn around time will be 37 divided by 5. So answer is 7.4. 3, 4. So average turnaround time is 7.4. Next, waiting time. How will calculate waiting time? Waiting time is turnaround time minus bus time. As we already studied, turnaround time is 4. So bus time will be 4 minus 4 is 0. 6 minus 3 is 3. 7 minus 1 is 6. 8 minus 2 is 6. 12 minus 5 is 12. Right. This is the waiting time. So how will calculate average waiting time? By same process, adding all the individual waiting time of all process and divided by total number of process. So 0 plus 3 is 3, 3 plus 6 is 9, 9 plus 6 is 15, 15 plus 7 is 22. So average waiting time will be 27 divided by 5. 6 plus 9, 15, 22. Sorry, 22 by 5. So 22 by 5 is 4.4 time unit. So in this way, we calculated various average waiting time of individual process and turnaround time. Like, so this is the example of non-preemptive scheduling. It means जब भी आप एक कोई प्रोसेस को रेडी क्यू से रनिंग क्यू में लेके आते हैं, तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रिलीज नहीं होगी इन एनी केस, राइट. तो सेकंड एल्गोरिथम इज process number, arrival time, bus time. One, two, three, four, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 1, 2, 3. Turnaround time, waiting time, response time. So, second algorithm is SJF, shortage of first. This is also example. First we will study the example of non-preemptive scheduling, and the preemptive version of SJF is called SRTF. Shortest remaining time first. So this time we study shortage of first. Criteria of selection will be on the bus time. FCFS में हम लोगों ने देखा जो क्राइटेरिया था वो क्या था, अराइवल टाइम. बट इन केस ऑफ SJF, नॉन प्रीएम्प्टिव SJF, द क्राइटेरिया विल बी बस टाइम एंड मोड इज नो प्रीएम्पशन. इन नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में हमको इसको सॉल्व करना है. सो सेम केस, विल ड्रॉ गेन चार्ट. Gain chart, we will start from 0. So 0 to 1 no process arrives. So selection, we cannot select any process for execution. So there will be delay of 1 time unit, right? For at time unit 1, what will happen in the system? The process P1 arrives. So अगर आपके सिस्टम में एक ही प्रोसेस है, रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है, तो आप सिलेक्शन किसको करोगे? जो भी आपके पास प्रोसेस अवेलेबल है उसको एग्जीक्यूशन के लिए आप स्टार्ट कर लोगे. तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन P1 का होगा. कितने टाइम यूनिट के लिए होगा? जब तक कि सिस्टम में नेक्स्ट एक्टिविटी ना हो, मतलब अराइवल ना हो. क्या अराइवल कब हो रहा है? टाइम यूनिट 2 पर है. तो हम इसका एग्जीक्यूशन, जो आपकी प्रोसेस P1 है, उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हम कब तक करेंगे? P1 का.
So this is the example of shortage of first non preemptive. So criteria will be bus time. FCFS में हम लोगों ने देखा था जो अराइवल टाइम था आपका, वो अराइवल टाइम के बेसिस पर हमने सिलेक्ट किया था, तो आपका जो सिलेक्शन था वो अराइवल टाइम के बेसिस पर था। यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा बस टाइम के बेसिस पर होगा। तो 0 टाइम यूनिट पर क्या किसी प्रोसेस का अराइवल हुआ है? नहीं, यहाँ पर कोई भी 0 टाइम यूनिट पर कोई प्रोसेस नहीं आई है। तो जब सिस्टम में प्रोसेस ही नहीं है तो आप किसको शेड्यूल करोगे? तो यहाँ पर शेड्यूल का आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 0 से टाइम 1 यूनिट पर आपका सिस्टम आइडल रहने वाला है, यानी सीपीयू आइडल रहेगा। तो जब 1 टाइम यूनिट पर अराइवल हुआ तो 1 टाइम यूनिट पर आपके पास सिस्टम ही एक प्रोसेस ही एक है, तो आप उसको शेड्यूल करोगे। और ये जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है आपका, एक बार प्रोसेस सीपीयू को अलोकेट हो गई तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता वो रिलीज नहीं होती। तो P1 आपने अलोकेट किया जिसका बस टाइम कितना है आपका 7, तो P1 का जो बस टाइम है 7, तो अगर 1 पे स्टार्ट हुआ है तो वो एंड कब होगा आपका 8 पर एंड होगा इसका एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जब तक आपका 8 हुआ तब तक आपके सिस्टम में बाकी की प्रोसेस आ गई। तो अब जब हम यहां पर देखते हैं कि आपके पास P2 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P4 अवेलेबल है और P5 अवेलेबल है। सो आउट ऑफ दिस विच प्रोसेस हैव मिनिमम बस टाइम? क्लियरली seen P3 is having the minimum bus time, so we will schedule P3 after P1. P1 का जो बस टाइम है वो कितना है? 1 है। सो अगर 8 पर स्टार्ट हुआ है तो एंड कहां पर होगा? 9 पर। सो दिस प्रोसेस कंप्लीटेड, दिस प्रोसेस कंप्लीटेड। नेक्स्ट प्रोसेस इज हैविंग मिनिमम बस टाइम इज 2, प्रोसेस P4, their bus time is 2, so we will assign P4 for scheduling. If starts from 9 and bus time is 2, so total time will be 11, right? So this process also get completed. Now which one having minimum bus time? So after this P5 is having minimum bus time. So if process P starts from 11, so end 11 plus 3 is 14, 14 पर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। So last process having the highest bus time is 5, that is P2. So if P2 is start from 14, so 14 plus 5 is 19. So it will take 19 time minutes for execution of this all 5 processes. So how will calculate the various parameter of average turnaround time, average waiting time, response time? So first we calculated completion time, then turnaround time, then waiting time, right? So completion time of P1, by seeing this example, process P1 completion time is 8 time unit, completion time of P2 is 19 time unit, completion time of P3 is 9 time unit, completion time of P4 is 11 time unit, completion time of P5 is 14 time unit. In this way we calculated all completion time of all the process. Next is to find out turnaround time. How will we calculate turnaround time? Turnaround time is completion time minus arrival time. We already studied. So 8 minus 1 is 6, 19 minus 2 is 17, 9 minus 3 is 6, 11 minus 4 is 5, 11 minus 4 is 7, 14 minus 5 is 9. So we find out various turnaround time of all process. So how will we calculate average turnaround time? By adding all the process, 6 plus 17 plus 6 plus 7 plus 9 divided by all the process. How many processes are there? 5. So average turnaround time is 6 12, 12 plus 7 19 plus 10 27, 27 plus 7 is 34, 34 plus 9 43, 43 divided by 5. In this way we can calculate average turnaround time. For waiting time, how will we calculate? Waiting time is turnaround time minus bus time. So turnaround time is 6. So after understanding of first come first serve, second topic is shortest job first.
शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इज एल्गोरिथम, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है वो बस टाइम के बेसिस पर होता है। जिस भी प्रोसेस का बस टाइम मिनिमम होगा वो हम उसको शेड्यूल करेंगे, और उसका जो मोड है वो है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड मतलब क्या, एक बार प्रोसेस किसी सीपीयू को असाइन हुआ है तो जब तक वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो प्रोसेस को रिलीज नहीं करेगा। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम, जीरो 1 2 4 5 3 4 1। टर्न अराउंड, waiting time, response time. So in these questions how many processes are there? 4 processes are there. We'll draw Gantt chart. At time 0, how many processes are available for selection? Only one process, that is P1. So we will schedule, आपके पास अगर सिर्फ एक प्रोसेस है तो आप उसमें बस टाइम के बेसिस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका बस टाइम देखते हैं, बस टाइम जो है P4 का 1 मिनिमम है और 1 को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। हमें ध्यान रखना है, हमारे पास एरर होने का चांसेस नहीं होना चाहिए। हमको ये देखना है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं। 0 पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है, क्या हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेस है? नहीं, हमारे पास कितनी प्रोसेस अवेलेबल है? सिर्फ एक प्रोसेस अवेलेबल है, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो 0 टाइम यूनिट पर आपकी प्रोसेस आई P1, उसको आपका सीपीयू अलोकेट हो गया। कितने टाइम पीरियड के लिए अलोकेटेड होगा? 5। तो अगर 0 पे अलोकेटेड हुई तो वो एंड कब होगा? 0 + 5 is 5. So in during this time unit what will happen? All 3 process arrived in ready queue. So आपके पास सिलेक्शन के लिए कितनी प्रोसेस अवेलेबल है? P2 भी अवेलेबल है, P3, P4. Among these 3 process, which one having minimum burst time? This is the scheduling criteria for SJF, shortest job first. So among these 3 process, it is clearly seen that process P4 is having shortest burst time. So we will select P4. अगर ये P5 स्टार्ट हुआ है, P1 एंड हुआ है 5 पर और इसका बस टाइम 1 है, तो ये एंड कब होगा? 6 पर, राइट? सो P1 completed, P4 completed. Among these 2 process, which one is having shortest burst time? Clearly seen, P2 is having shortest burst time. So we schedule P2. Starting time is 6. So end time will be 6 + 3 is 9. Right? So now P2 also completed. Last process is P3. We have to select. We have no options. P3. Start is 9. So 9 + 4 is 13. In this way, all process complete its execution. Total time is 13. So how will calculate completion time? Completion time जो है आपका P1 का completion time क्या हो रहा है? जहां पर P1 end हो रहा है, P1 end कब हो रहा है? 5 पर. So completion time of P1 is 5. Completion of time of P2 is 9. Completion time of P3 is 13. Completion time of P4 is 6. क्लियरली विजिबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टर्न अराउंड टाइम, हाउ विल वी कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम इज द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 5 - 0 इज 5, 9 - 1 इज 8, 13 - 2 इज 11, 6 - 4 is 2. In this way we calculated all the turnaround time of P1 to P4. So average turnaround time will be, average turnaround time is summation of all individual turnaround time, 5 + 8 + 11 + 2 divided by number of process. How many processes are there? 4. So 11 + 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 and 11 is 26. So answer will be 26/4.
So average, in this way we can calculate turnaround time. How will we calculate waiting time? Waiting time is turnaround time minus bus time. Turnaround time is 5 minus 5 is 0. 8 minus 3 is 5. 11 minus 4 is 7. 2 minus 1 is 1. So in this way we calculated all the waiting time of all the process. So how will we calculate average waiting time? Same. Average waiting time is summation of all the process divided by this 0 plus 5, 0 plus 5 plus 7 plus 1 divided by number of processes. 7 plus 8 plus 5 is 13. So average waiting time is 13 by 4. रिस्पॉन्स टाइम, जब हम लोगों ने फंडामेंटल देखा तब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? प्रोसेस को पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला था वो वाला टाइम से जब प्रोसेस अराइवल हुआ उस टाइम का जो डिफरेंस होता है दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम. सो सिस्टम में पहली बार प्रोसेस कब आया था? P1 प्रोसेस आया था 0 टाइम पर और उसको रिस्पॉन्स कब मिला? 0 टाइम पे. तो 0 माइनस 0 इज 0. P2 प्रोसेस जो है उसको पहला रिस्पॉन्स सिस्टम में कब मिला था? 6 टाइम यूनिट पर. P2 का अराइवल कब हुआ था? 1 टाइम यूनिट पर. तो 6 माइनस 1 इज 5. सिमिलरली P3 को पहला रिस्पॉन्स कब मिला था? 9 टाइम यूनिट पर. P3 का अराइवल कब हुआ था? P3 का अराइवल हुआ था 2 पे. तो 9 माइनस 2 इज 7. सेम P4 का फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला था? मतलब सीपीयू पे पहली बार शेड्यूल कब हुआ था? 5 टाइम यूनिट पर. तो 5 पर अराइवल हुआ है, 5 पर रिस्पॉन्स मिला है. अराइवल कब हुआ था इसका? P4 का अराइवल हुआ था 4 पे. तो 5 माइनस 4 इज 1. यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि यहां पर वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम का जो वैल्यूज है वो सेम है. क्यों? ऐसा होना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आपको पहली बार कोई प्रोसेस सीपीयू को असाइन होती है तो नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में वो रिलीज ही नहीं होती जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता. तो रिस्पांस भी उसको उसी समय मिला और उसका एग्जीक्यूशन भी तभी हुआ. तो जब नॉन प्रीएम्प्टिव केस होता है उस केस में वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम इज सेम, राइट? सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट. क्राइटेरिया इज based on the bus time. Whichever process has minimum bus time we will select, and the mode is non-preemption mode. The preemptive version of this schedule algorithm is preemptive SJF, and the name is called shortest remaining time first. So we can calculate same numerical, by shortest remaining time first. That is the preemptive version of shortest job first. This is called SRTF, shortest remaining time first is called preemptive version of shortest job first, right? So we draw Gantt chart. Selection criteria will be same, but the concept is mode is preemptive version. The criteria will be the bus time and mode will be criteria is bus time and mode is preemptive version है, वहां पर काम करेगा, right? So we'll start by 0. So at 0 how many processes are there in the system? In the ready queue 1, right? So we'll start with P1. यहां पर हमको ध्यान देना है कि जब प्रोसेस है हम क्या ये चूंकि प्रीएम्प्टिव वर्जन है, प्रीएम्प्टिव वर्जन में क्या हमेशा के लिए सीपीयू को असाइन होगा? नहीं. हमको ये चेक करना है कि नेक्स्ट अराइवल या एक्टिविटी सिस्टम में कब हो रही है. नेक्स्ट अराइवल हो रहा है P2 प्रोसेस का एट टाइम यूनिट 1. तो हम वहां पर डिसीजन लेंगे. P1 का जो टाइम है हम उसको 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे. तो अगर इसका टोटल बस टाइम 4 था और 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूशन मिला है तो अब जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 4. अब आपका जब सिस्टम टाइम यूनिट 1 है, टाइम यूनिट 1 पर कौन सी प्रोसेस आई है? P2. तो P2 जो है उसका बस टाइम क्या है आपके पास? 3. तो आपके पास टाइम यूनिट 1 पर 2 प्रोसेस है, एक प्रोसेस है P1 और एक प्रोसेस है P2. सो P1 का जो बस टाइम है रिमेनिंग, यहां पर हमको जो पुराना टाइम है वो नहीं देखना है, जिस टाइम पर जितना टाइम रिमेनिंग है वो देखना है. तो P1 का जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना है? 4. और P2 का जो टाइम है वो 3. तो P1 का टाइम है 4 और P2 का टाइम 3. आउट ऑफ दिस प्रोसेस विच वन हैज मिनिमम बस टाइम?
because algorithm says shortest remaining time first. So which process has minimum burst time? P2. So we will select P2 for execution, right? The process P2 will be selected for the execution for how many time unit? 1. क्यों? क्योंकि 2 टाइम यूनिट पर अगली प्रोसेस आ रही है P3, तो हमने आपको P2 को सिलेक्ट किया एक टाइम यूनिट के लिए, तो 3 - 1 2. So the remaining burst time of P2 is 2, right? At time unit 3, at time P2, right? So at time unit P1 का हो गया, P2 को हो गया. At time unit 2, what will happen? द प्रोसेस P3 जो का अराइवल हो गया है और उसका टाइम यूनिट 4 है, तो टाइम यूनिट 2 पर आपके पास सिस्टम में कितनी प्रोसेस है? P1, P2 एंड P3. P1 का जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 4, P2 का जो रिमेनिंग टाइम है 2 और P3 का जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 4. सो आउट ऑफ दिस 3 प्रोसेस which one has remaining burst time? So clearly seen by number that P2 is having minimum burst time, so we will assign P2 for execution, right? So P2 को हम execution करेंगे अगले टाइम यूनिट के लिए. अगला जो आपका अराइवल हो रहा है, हम 3 तक इसको एग्जीक्यूट करते हैं. क्या 3 पर कोई सिस्टम का अराइवल हो रहा है? नहीं हो रहा है. अगला जो अराइवल हो रहा है वो 4 पर है, राइट? तो हम इसको P2 को 4 तक हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना? तो जब P4 पर एग्जीक्यूट किया तब हमारे पास सिस्टम में कितनी यूनिट बची? इसका जो 2 यूनिट के लिए अराइवल एग्जीक्यूशन हुआ है, तो P3 को हमने जो एग्जीक्यूशन टाइम था टोटल वो 4 था, 2 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो 4 - 2 is 2. तो यहाँ पर हमने उसका जो रिमेनिंग टाइम है 2 कर दिया. अब टाइम यूनिट 4 पर हमको डिसीजन लेना है, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन द सिस्टम. P1 process available, P2 process available, P3 and P4, right? So these 4 processes are available in the ready queue. So how will we select which one has having minimum burst time? So out of this process, P1 is having 4, P2 is having 2, P3 is having 2 and P4 is having 1 burst time. So the by criteria process P4 will be selected. So we will select P4. P4 का सिलेक्शन हुआ. अगर 4 पे स्टार्ट हुआ और उसका बस टाइम 1 है तो इसका एंड टाइम कितना होगा? 4 1 + 5. So process P4 will be completely executed, right? एग्जीक्यूशन हो. अब कोई सिस्टम में अराइवल हो पा रहा है क्या? किसी का अराइवल नहीं हो पा रहा है, राइट? सो आउट ऑफ दिस 3 प्रोसेस, हाउ विच वन इज हैविंग द मिनिमम बस टाइम? सो आउट ऑफ दिस 3 प्रोसेस, P2 and P3 is having the minimum bus time. Both are same, that is 2. Again टाई ब्रेकर. अगर आपके पास कभी ऐसा है जब आपके पास इसमें टाई हो चुका है तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? जैसे FCFS में हम लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? अराइवल टाइम. तो हम उस केस में टाई कहाँ रिजॉल्व करते थे? उनके प्रोसेस आईडी के बेसिस पर. तो अगर यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में अगर आपका टाई हो रहा है तो आपका टाई ब्रेकर क्राइटेरिया होगा विल बी अराइवल टाइम. जो प्रोसेस पहले आई है उसको पहले आप एग्जीक्यूट करोगे. तो पहली प्रोसेस कौन सी आई थी? P2 और P3 में वो P2 पहले आया था, तो आप P2 को एग्जीक्यूट करोगे. P2 अगर 5 से स्टार्ट हुआ है और जो है आपका इसका बस टाइम बचा हुआ है 2, तो इसका 5 से स्टार्ट होगा तो एंड कब होगा? 7 पर एंड होगा. तो आपका P2 भी कंप्लीट हो गई प्रोसेस आपकी, राइट? और आपके पास अब लास्ट प्रोसेस जो बची है वो है आपके पास P3. P3 जो है अगर आपका इसका जो टाइम 7 से स्टार्ट हुआ है तो 7 + 2 9, तो आपका P3 प्रोसेस हो गया कंप्लीट. और लास्ट में आपके पास P1 है. P1 जो प्रोसेस है वो 9 से स्टार्ट हुआ, इसका रिमेनिंग टाइम 4 है, तो 9 + 4 is 13. एनी प्रोसेस रिमेनिंग? नो. All terminology 0, right? So in this way we executed all the process using preemptive SJF or SRTF algorithm, right? So we will calculate turnaround completion time of these processes, right? So completion time of P1 is here. अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर P1 जो है इसमें गैंट चार्ट में कितनी बार आया है? 2 बार. तो P1 का कंप्लीशन हम कहाँ से देखेंगे? लेफ्ट साइड से देखेंगे. कब तक? जब तक उस प्रोसेस का लास्ट ऑकरेंस ना हो. यहाँ पर P1 का जो प्रेजेंस है वो 2 बार है, लास्ट में यहाँ पर आ रहा है और कंप्लीट हो रहा है 13. तो P1 का जो कंप्लीशन टाइम होगा वो कितना होगा? राइट साइड ऑफ दिस 13.
P2 का जो हम देखेंगे, P2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, और P2 जो लास्ट टाइम आ रहा है उसका जो लास्ट बार होगा वो दैट विल बी द कंप्लीशन टाइम। सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 7, राइट। P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या होगा, P3 जो लास्ट टाइम आ रहा है, लेफ्ट सम सर्च करेंगे, लास्ट टाइम हो रहा है यहाँ पर, इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 9 है। P4 का ऑकरेंस कब है, एक ही बार ऑकरेंस है, और इसका जो कंप्लीशन टाइम है यहाँ अगेन चार्ट से जो दिख रहा है हमें वो 5। सो 13, 7, 9 एंड 5 विल बी द कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। तो टर्न अराउंड टाइम विल बी द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 13 minus 0 is 13 turnaround time, 7 minus 1 is 6, 9 minus 2 is 7, and 5 minus 4 is 1. So this is the turnaround time of all the process. Similarly waiting time कैसे कैलकुलेट करते हैं, waiting time is turnaround time minus burst time. अब हमको यहाँ ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग टाइम वो नहीं, जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम था उससे आपको माइनस करना है। तो 13 minus 5 is 8, 6 minus 3 is 3, 7 minus 4 is 3, 1 minus 1 is 0. So this is the waiting time of all the process. Similarly, we can calculate average turnaround time by adding all these numbers and divided by 4, because there are 4 processes in the system. Similarly, average waiting time is calculated by adding of all these numbers and divided by number of processes in the system. नाउ इंटरेस्टिंगली रिस्पॉन्स टाइम, जब मैंने लास्ट टाइम जब आपको बताया था कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो नॉन प्रियम्पशन है उसके केस में सेम होता है। तो क्या यहाँ पर प्रियम्पटिव वर्जन है तो उस केस में रिस्पॉन्स टाइम अलग होगा? हाँ, हम अलग होना चाहिए, हम इसको चेक करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम आप देखिए, P1 जो है, P1 को पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला था? P1 को 2 बार रिस्पॉन्स मिला, उसमें से पहली बार रिस्पॉन्स मिला था 0 पर, और अराइवल भी कहाँ था इसका? 0 पर। तो 0 minus 0 is 0, राइट। सिमिलरली फॉर P2 का पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला था? यहाँ पर मल्टीपल ऑकरेंस है, लेकिन पहला रिस्पॉन्स जो मिला था वो 1 टाइम यूनिट पर मिला था, गेन चार्ट से क्लियरली विजिबल है। तो 1 टाइम पर आया था, और अराइवल क्या है इसका? 1, तो 1 minus 1 is 0। सिमिलरली P3 जो है आपका, P3 का जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला था वो 7 टाइम यूनिट पर है, तो 7 माइनस अराइवल कब था इसका? 2, तो 7 minus 2 is 5, राइट। सिमिलरली P4 का जो रिस्पॉन्स मिला था वो 4 टाइम यूनिट पर था, 4 टाइम यूनिट से इसका अराइवल कब हुआ था? 4 पर, तो 4 minus 4 is 0। Clearly by this observation that waiting time and response time are different in case of preemptive scheduling algorithms. So in case of SRTF, the response time will be 0050 for all this process. How will we calculate average response time? By adding all this and divided by this. So आपको क्लियरली समझ में आया है कि प्रिएम्प्टिव वर्जन में थोड़ा सा आपको देखना है क्या क्या क्राइटेरिया देखेंगे। आपको ये देखना है, चेक लगाना है कि आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका जो है बस टाइम है, लेकिन बस टाइम में भी आपको ये देखना है कि मिनिमम बस टाइम किसका है। तो जो अवेलेबल प्रोसेस है उन्हीं के बेसिस पर आप सिलेक्ट कर पाओगे, तो उसी से आप सिलेक्ट करोगे। मोड जो है उसका प्रिएम्प्टिव है, तो आपको जब भी सिस्टम में चेंज हो रहा है, सिस्टम में चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है? अराइवल हो रहा है। जब भी किसी प्रोसेस का अराइवल होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको रुकना होगा और आपको ये देखना होगा कि आउट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस which one is having the minimum burst time, that is the selection criteria in case of SRTF, shortest remaining time first. So this is extremely important concept in terms of GATE or any other competitive exam, also in university examination. So third one topic is round robin scheduling. Our next topic is round robin scheduling. This is extremely important concept in terms of GATE. Many questions are asked regarding राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? बर्स्ट टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम, और जो मोड है इसका वो क्या है? मोड जो है इसका प्रिएम्प्टिव है, और जो क्राइटेरिया है वो टाइम क्वांटम और अराइवल टाइम के बेसिस पर हम इसको निकालते हैं। पहली बार आप लोग देख रहे हैं कि टाइम क्वांटम क्या होता है।
तो पहले हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हाँ, so this is the numerical we have to solve. We have process IDs, arrival time and bus time, right? As in all numericals. So criteria is time quantum and arrival time. We know the arrival time. Arrival time का criteria हम लोगों ने FCFS में देखा था. What is time quantum? We understand what is time quantum. This is the ready queue. This is the running queue, right? Process is selected by any scheduler. This is called short-term scheduler. We select process to execute on CPU, right? So criteria will be the time quantum. Time quantum is the time unit. कितनी टाइम यूनिट के लिए जो प्रोसेस है वो इस CPU पे एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आपको CPU शेड्यूलिंग के जो अलग अलग एल्गोरिथम्स बताए, उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस बताए। आपके पास इनको सॉल्व करते हुए कोई डाउट आता है तो किसी एक स्टूडेंट के 2 क्वेश्चन है, किसी दूसरे स्टूडेंट के 3 क्वेश्चन है, किसी दूसरे स्टूडेंट के अलग क्वेश्चन है, तो हर किसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डाउट क्लियर करने में अलग अलग टाइम लगेगा। मान लो मैं पहले स्टूडेंट को सर्व करता हूं और उसके 5 क्वेश्चन है तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टूडेंट है, उसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि उसके 2 क्वेश्चन है। तीसरा स्टूडेंट के 1 ही क्वेश्चन है। तो मैं पहला अपना पूरा जो अवेलेबल टाइम है वो पहले स्टूडेंट को देने की जगह मैं एक एल्गोरिथम लगाता हूं कि मैं 5 मिनट का टाइम हर स्टूडेंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर उसका क्वेश्चन 2 केस होंगे, उस 5 मिनट में या तो उसके क्वेश्चन जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे या फिर उसका जो डाउट है वो क्लियर नहीं होंगे, उसके क्वेश्चन कंप्लीट रहेंगे। तो उसको अब अगला चांस कब मिलेगा? अगले टाइम पे। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगले क्वेश्चन को अगले स्टूडेंट पे स्विच करूंगा, अगले 5 मिनट में उसको दूंगा। 2 केस होंगे, या तो विद इन 5 मिनट उसके डाउट क्लियर हो जाएगा या फिर क्या होगा, उसका जो टाइम मिनट है वो टाइम क्वांटम में एक्सपायर हो जाएगा और मैं अगले को चला जाऊंगा। इसी टाइप से होगा। तो टाइम क्वांटम वो टाइम है जिस समय एक किसी प्रोसेस को CPU पे अलोकेट होने के लिए, एग्जीक्यूशन होने के लिए हम वो टाइम देते हैं। तो ये भी एक प्रीएम्प्टिव वर्जन है, प्रीएम्प्टिव मोड में काम होता है। सो क्राइटेरिया क्या है आपका? अराइवल टाइम के बेसिस पर टाइम क्वांटम तक हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और कब तक करते हैं? जब तक टाइम आउट जो है, टाइम क्वांटम जो है या तो एक्सपायर हो जाए या प्रोसेस कंप्लीट हो जाए नेचुरली। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको आगे एग्जीक्यूशन में लेंगे। यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। मैंने जैसे आपको बताया था, एक हमको रेडी क्यू बना देना है ना, और एक हमारा गेन चार्ट जो कि रनिंग क्यू को एक्सप्लेन करता है, राइट। सो रेडी क्यू से आपको ये पता रहेगा कि कौन कौन सी प्रोसेस आ गई है, उस प्रोसेस से आपको उसको एग्जीक्यूशन के लिए कैसे लेना है। मान लो यहाँ पर आपका जो पहला अराइवल हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अराइवल टाइम जो है आपका 543126 है। 0 टाइम पर एक भी प्रोसेस का अराइवल नहीं हो पा रहा है। तो अगर 0 टाइम पर एक भी प्रोसेस का अराइवल नहीं हो रहा है तो अगला अराइवल कब हो रहा है? 1 पर। तो 0 से 1 के बीच में क्या होने वाला है? आपका CPU आइडल रहने वाला है 0 से टाइम यूनिट 1 पर। जैसे मैं क्लास में अवेलेबल हूँ और कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है तो मेरा मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं यूटिलाइजेशन हो पाएगा जब तक कि एक स्टूडेंट का अराइवल नहीं हो पाता। तो जैसे ही यहाँ पर अगला जो अराइवल हो रहा है वो कब हो रहा है? वो टाइम यूनिट 1 पर हो रहा है और वो प्रोसेस P4 का हो रहा है। तो हमारे पास पहली प्रोसेस आई P4, कितने टाइम यूनिट पर आई? 1 टाइम यूनिट पर आई, राइट। तो अब जब 1 टाइम यूनिट पर हम बात करें, क्या हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल है? नहीं, सिंगल प्रोसेस अवेलेबल है, दैट इज P4। तो हम और किसी को भी शेड्यूल कर पाएंगे। जब हमारे पास ऑप्शन ही एक है तो फिर हम बाकी की प्रोसेस को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास एक ही प्रोसेस है तो उसी को हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आपके पास P4 प्रोसेस आई, कितने टाइम यूनिट के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे? जब तक कि अगली प्रोसेस का अराइवल नहीं हो पाता।
अगली प्रोसेस का अराइवल कब हो रहा है, 2 टाइम यूनिट पर, है ना। तो आपने इसको 2 टाइम यूनिट पर हो रहा है तो इसको 1 टाइम यूनिट के लिए आपने इसको एग्जीक्यूट किया। आपका इसका टाइम क्वांटम जो है, इस केस में मैं आपको टाइम क्वांटम असाइन करना रह गया। टाइम क्वांटम जो है आपका, इस क्वेश्चन का टाइम क्वांटम जो है 3 टाइम यूनिट है, जो 3 टाइम यूनिट है यहाँ पर। तो अगर आपको कोई प्रोसेस का अराइवल हुआ है तो 1 प्रोसेस आपकी अवेलेबल है, एक टाइम यूनिट 1, और इसका टाइम क्वांटम अगर 3 है तो कितने पर अवेलेबल एग्जीक्यूट होगा, ये 1 पर स्टार्ट है तो ये 1 + 3 यानी 4 टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट होगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो भी टाइम क्वांटम यानी अलोकेटेड टाइम है उस टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन होगा, या तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए या फिर 3 टाइम क्वांटम के लिए करेंगे। तो P4 का जो बस टाइम है वो कितना है, 9। तो 9 में से 3 माइनस हुआ तो अब इसका जो टाइम बचा वो रिमेनिंग टाइम 6 टाइम क्वांटम है। अब ये 4 टाइम यूनिट तक सिस्टम में हुआ क्या कि आपके पास कौन सा टाइम यूनिट प्रोसेस आई, P5 प्रोसेस आ चुकी है आपके पास, है ना। और 3 टाइम यूनिट पर आपकी कौन सी प्रोसेस आई है, 3 प्रोसेस आई है, और 4 जो है आपका वो प्रोसेस, हाँ P2 भी प्रोसेस आ चुकी है। 8 टाइम यूनिट 4, हाउ मेनी प्रोसेस अराइव्ड बाय सीइंग दिस अराइवल टाइम, दिस 3 प्रोसेस अराइव्ड, P5, P3 एंड P2, राइट। सो द प्रोसेस विल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 to 4। क्या यहाँ पर P4 जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई क्या, नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसके डाउट ज़्यादा है, 5 मिनट से ज़्यादा, यहाँ पर 3 टाइम यूनिट है, 3 मिनट से ज़्यादा है, तो क्या करें, उसी प्रोसेस को पूरा टाइम देंगे, नहीं, हमने क्या किया, उसको 3 मिनट का टाइम दिया और अगली प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो गए। तो जो P4 है अब आपको इसको स्विच करना पड़ेगा, स्विच करके क्या इसका अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ है, इसको फिर से क्यू में लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, P4 को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको 3 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट किया और उसके बाद वापस उसको क्यू में पीछे आपने लगा दिया। क्यों, क्योंकि उसकी क्यूरी सॉल्व नहीं हुई, अभी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम 6 टाइम यूनिट बाकी है। तो क्या अभी एंड हुआ है, नहीं एंड हुआ है, तो आपने इसको लगा देंगे यहीं पर। इसको बोलते हैं ये कैसे हुआ, तो जब प्रोसेस रनिंग प्रोसेस से रनिंग क्यू से रेडी क्यू में जाती है तो उसको बोलता जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होगा कि जो प्रोसेस की जितने स्टेट है उसको स्टेट को आपको सेव करना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता है, और फिर वो आपका सेव, तो इस सेव करने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम तक आपका P3, P2, P3 और P2 का अराइवल हो चुका है इन 3 प्रोसेस का, और P4 को आपको बैक में लगा देना, राइट। समझना अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन के, इसलिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो P4 का प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ 4 टाइम यूनिट पर। अब 4 टाइम यूनिट पर आपके पास सिस्टम में कितनी प्रोसेस है, ये प्रोसेस अवेलेबल है। P4 को आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब आपके पास रेडी क्यू में किसका नंबर है, P2 का, क्योंकि इसका अराइवल, P5 का क्योंकि इसका अराइवल पहले हुआ है, तो आप P5 को एग्जीक्यूट करोगे। P5 का जो बस टाइम है वो कितना है, 2 टाइम यूनिट। हमारा टाइम क्वांटम कितना है, 3 टाइम यूनिट। तो क्या हम इसको 3 टाइम क्वांटम के लिए चलाएंगे या 2 टाइम यूनिट के लिए? लॉजिकली दिख रहा है कि जब उसको बस टाइम 2 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है तो हम उसको 2 टाइम यूनिट के लिए चलाएंगे। तो अगर वो 4 से स्टार्ट हुआ है तो वो कहां पर एंड होगा, 6 पर होगा, P5। क्या इसका कंप्लीशन हो चुका है? हाँ, क्योंकि इसका 2 टाइम यूनिट है, इसका कंप्लीशन आपका हो चुका है, तो P5 आपकी एंड है। अगर इसका कंप्लीशन हो चुका है तो क्या हम इसको एंड में रेडी क्यू में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं बनता उसको लगाने का। उसका क्यूरी सॉल्व हो गया, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो आपने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, आपका 6 टाइम यूनिट तक क्या कोई और अराइवल आया है? यस, 4 से 6 टाइम यूनिट पर 2 अराइवल आ चुके हैं, प्रोसेस P1 का और प्रोसेस P6 का। तो आपने यहां पर P1 का अराइवल पहले हुआ था 5 टाइम यूनिट पर, और उसके बाद अराइवल हुआ P6 प्रोसेस का, तो आपने उनको क्यू में लगा दिया। तो यहां पर चूंकि P4 जो है P5 का बैक में कहीं है ही नहीं, तो आपको उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका P5 का भी आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब क्यू में आपके पास कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है? P3। तो P3 का कितना टाइम क्वांटम अवेलेबल है? 7 टाइम क्वांटम आपका एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इसको कब असाइन करोगे? अगर आपने इसको 6 पे असाइन किया और 3 टाइम क्वांटम है तो P3 जो होगा वो 6 + 3 9 तक जाएगा। तो P3 को आपने कर लिया, 3 टाइम यूनिट के लिए करा, लेकिन टोटल इसका बस टाइम 7 था, तो 7 - 3 = 4। सो P3 का जो रिमेनिंग बस टाइम है दैट इज 4। तो क्या P4 को अपेंड करना पड़ेगा लास्ट में? यस, करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है। तो P3 को आप इसको क्या करेंगे, लास्ट में अपेंड करेंगे। साथ में किसी का अराइवल हुआ है क्या 6 to 9 के बीच में? 6 लास्ट अराइवल है, इसके बाद किसी का अराइवल नहीं हुआ है, तो हम उसको आप अराइवल कंसिडर यहाँ पर अभी नहीं होगा।
राइट। तो P3 को हम इसको बैक में लगा देंगे, P3 का एग्जीक्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो P2 है। P2 का जो बस टाइम है वो कितना है, P2 का जो बस टाइम है वो 6 है। तो आप उसको अगर 9 पे स्टार्ट कर रहे हो तो P2 कब होगा, 9 + 3 12। टोटल टाइम इसका P2 का कितना था, 6 में से 3 कंप्लीट हो गया। तो अब बस टाइम कितना बचा है इसका, 3 टाइम यूनिट, राइट। तो P2 आपका एंड हो गया। क्या P2 को और एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, यस P2 को और एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो कहां पर ले जाना पड़ेगा इसको, लास्ट में ले जाना पड़ेगा। तो P2 को आप लास्ट में लेके गए तो P2 भी आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अराइवल कुछ हो ही नहीं रहा सिस्टम में, अब आगे जो भी हो रहा है वो आपका क्या है, आपको बैक में लेके जाना है। अब अगला जो है रेडी क्यू में जो प्रोसेस है अराइवल टाइम के बेसिस पे सिलेक्ट करना है। तो P4 को सिलेक्ट करेंगे, P4 को आप यहाँ असाइन करेंगे CPU को। तो अगर 12 पर स्टार्ट हो रहा है और टाइम क्वांटम इसका 3 है तो P4 का जो बस टाइम है वो कितना बाकी है, आपका 6 टाइम यूनिट बाकी है। तो हो जाएगा 12 + 3 कितना होगा, 15 होगा, राइट। अब यहाँ पर 6 में से 3 टाइम यूनिट आपका रिमेनिंग हो गया, है ना। तो आपका P4 हो गया। क्या P4 अभी भी एग्जीक्यूशन के लिए बाकी है, दिख रहा है 3 टाइम यूनिट बाकी है। तो P4 को आप क्या करोगे, रेडी क्यू में डाल दोगे। तो आपका P4 का भी असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। नाउ P1 का कितना टाइम यूनिट बाकी है, 5। तो आपने अगर P5 के बाद P1 को लिया और 15 पर है तो ये कहां तक होगा, 15 + 3 8 18। तो यहां पर 3 टाइम यूनिट गया तो कितना बचा, 2 टाइम यूनिट, राइट। नेक्स्ट P6, P1 जो है क्या आपका और रिमेनिंग इसका एग्जीक्यूशन बाकी है, यस इसका रिमेनिंग बाकी है। तो P1 को आपको इसको एंड में लेके जाना है। ये ध्यान रखना हमको, यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी कोई प्रोसेस ऐसी है जिसको टाइम क्वांटम के एग्जीक्यूशन के बाद अगर उसका बस टाइम रिमेनिंग होगा तो उसको आपको रेडी क्यू में एंड में अपेंड करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके बाद उसके बाद आया P6 पर। P6 का कितना टाइम यूनिट है, 3। तो अगर वो 18 से स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक जाएगा, 21 पर जाएगा। क्या इसमें टाइम और बाकी है, नहीं, ये तो 0 हो चुका है। तो P6 जो है आपका एंड हो गया है। तो P6 जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो क्या ये रेडी क्यू में अपेंड होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद आया P3 का कितना टाइम यूनिट बाकी है, 4। तो अगर वो 21 पे स्टार्ट हुआ है P4 तो 21 + 3 24। और यहाँ पर क्या होगा, आपका P4 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है। P3 का जो टाइम यूनिट है वो 4 है। तो 4 माइनस किया इसमें तो बचा इसका टाइम यूनिट 1। क्या इसका टाइम यूनिट बाकी है, यस टाइम यूनिट बाकी है। तो आप क्या करोगे, इसको रेडी क्यू में उसको अपेंड कर दोगे, किसको, P3 को, राइट। नेक्स्ट P2 का टाइम यूनिट कितना बाकी है, 3। तो अगर आप 24 से स्टार्ट हुआ है तो P2 कितने पे होगा, 24 + 3 27। यहाँ पर टाइम यूनिट कितना है इसका, 3। तो 3 - 3 0। तो P2 आपका एंड हो चुका है। अगर P2 एंड हो चुका है तो क्या इसको अपेंड करना पड़ेगा, पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका P2 कंप्लीट हो गया। P4 कितना है आपका, P4 का जो टाइम बचा है 3। तो अगर वो 27 से स्टार्ट हुआ है तो कितना होगा, 30। तो P4 गया। P4 का जो टाइम है 3 था, 3 - 3 0। तो ये भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो क्या इसको अपेंड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। P1 जो है आपका, P1 का कितना टाइम यूनिट बाकी है आपका, P1 का टाइम यूनिट बाकी है 2। तो अगर 30 पे स्टार्ट हुआ है P1 तो कितना रहेगा, 30 + 2 = 32, राइट। तो ये 2 भी आपका गया, यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसको अपेंड करना पड़ेगा क्या, रेडी क्यू में, नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज P3 का जो टाइम यूनिट बचा हुआ कितना है, 1 टाइम यूनिट। तो अगर वो 32 पर है तो P3 कितना होगा, 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा और 33 पे एंड होगा। तो इन दिस वे ऑल प्रोसेसेस गेट एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। टोटल इसका सिमुलेशन टाइम लगा वो 33 टाइम यूनिट लगा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल टाइम कितना लगा सिमुलेट करने के लिए, इसमें से कितना टाइम यूटिलाइज था। सो 1 टाइम यूनिट को छोड़ के बाकी जितना टाइम यूनिट था उतने में आपका CPU मैक्सिमम यूटिलाइज था, है ना। रेडी क्यू को मेंटेन करने से आपको ये पता रहेगा कि किसका अराइवल किसके बाद हो रहा है। अगर यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको अलग अलग निकालना है। कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम कैसे निकलेगा इसका, सेम कंसेप्ट। P1 का जो है
लास्ट ऑकरेंस कब था, लास्ट ऑकरेंस था यहाँ पर, तो इसका राइट साइड क्या बोलता है 32, तो आपका P1 का कंप्लीशन क्या टाइम कितना होगा 32। P2 का कंप्लीशन टाइम कैसे निकलेगा, सबसे लास्ट में आप आ जाओ, है ना, यहाँ पर मल्टीपल ऑकरेंस से लास्ट में आ गए। P2 का लास्ट में जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज 27, तो आपने यहाँ लिख दिया 27। P3 का जो लास्ट ऑकरेंस है वो कौन सा है, ये लास्ट वाला ऑकरेंस 33, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना आ जाएगा 33। सिमिलरली P4 का लास्ट ऑकरेंस कौन सा था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, P4 यहाँ पर है, तो इसका लास्ट जो टाइम है वो दैट इज 30, तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज P5 का लास्ट ऑकरेंस कहाँ पर है, P5 सिंगल टाइम पर है, एक ही बार में, हाँ यहाँ पर लास्ट ऑकरेंस ये, तो इसका कितना है 6, तो यहाँ पर आपने 6 लिख दिया। P6 का लास्ट ऑकरेंस कब है, एक ही टाइम पर है 21, तो यहाँ पर आपने इसका 21 लिख दिया। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट completion time. Now turn around time, same concept. Turn around time is what, completion time minus arrival time. So 32 minus 5 is 27, 27 minus 4 is 23, 33 minus 3 is 30, 33 minus 1 is 29, 6 minus 2 is 4, and 21 minus 6 is 15. Now waiting time, how will we calculate waiting time? Waiting time is what, total time minus bus time. So total time is called turnaround time. So turnaround time minus bus time. 27 minus 5 is 22, 23 minus 6 is 17, 30 minus 7 is 23, 29 minus 9 is 20, 4 minus 2 is 2, 15 minus 3 is 12. Right? So in this way we calculate waiting time. Already we have seen by many examples that how we calculate average waiting time, adding of all this turnaround time and divided by number of processes. In this case, how many processes are there? 6 processes are there. And same concept in case of average waiting time, we adding all waiting time divided by number of process. Now response time. How will calculate response time? As I have already explained, response time क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलता है तो उस टाइम से लेके जब अराइवल हुआ उनके जो टाइम डिफरेंस को बोला जाता है रिस्पॉन्स टाइम। तो P1 का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला था, बाय गैंट चार्ट P1 का फर्स्ट रिस्पॉन्स था 15 पर, अराइवल कब हुआ इसका 5 पे, तो 15 माइनस 5 इज 10। नाउ P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला, लेफ्ट सम को सर्च करना है, P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला 9 पे, तो 9 माइनस अराइवल कब हुआ इसका 4, 9 माइनस 4 इज 5। सिमिलरली P3 का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला था वो 6 पे और अराइवल कब हुआ इसका 3 पे, तो 6 माइनस 3 इज 3। नाउ P4 का फर्स्ट जो रिस्पॉन्स मिला था वो कब मिला था हमको 12 पर और अराइवल कब हुआ था 1 पर, तो 12 माइनस 1 इज 11। नाउ P5 का जो आपका अराइवल है फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो कब मिला 4 पे और आपका अराइवल कब हुआ था 2 पे, तो 4 माइनस 2 इज 2। नाउ लास्ट P6 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 18 पर, 18 पे है और अराइवल कब हुआ 6 पे, तो 18 माइनस 6 इज 12। हमने पहले भी देखा इन केस ऑफ SRTF एंड इन केस ऑफ राउंड रॉबिन दैट वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम आर डिफरेंट, होगा भी सही, क्योंकि आपकी डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिल रहा है उसके उस पर रहेगा। तो कुछ हम इसका इवोल्यूशन निकालते हैं कि हमारा इवोल्यूशन क्या बोलता है कि हमारा वेटिंग टाइम क्वांटम कब होगा। अगर हमारा टाइम क्वांटम जो है टाइम क्वांटम अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में देखें, अगर हमने टाइम क्वांटम 3 रखा, अगर हम टाइम क्वांटम की वैल्यू को बढ़ा दें, 4 बढ़ा दें, 5 कर दें, 6 कर दें, तो आप इसका एनालिसिस करना, तो उस केस में आपकी जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि उतने समय के लिए आपका एग्जीक्यूशन होगा, तो उनका एग्जीक्यूशन प्रोसेस का पहले होगा तो उनकी कॉन्टेक्स्ट जो स्विचिंग है वो मिनिमम होगी, और उनका रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम जो है उनका इंक्रीज होगा, है ना। क्योंकि प्रोसेस टाइम क्वांटम ज़्यादा तो जो पहला रिस्पांस मिलना चाहिए वो लेट मिलेगा तो आपका जो रिस्पांस टाइम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम टाइम क्वांटम को डिक्रीज करते हैं, अगर टाइम क्वांटम की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेंगे
तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रिस्पांस टाइम जो है आपका वो डिक्रीज होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका टाइम क्वांटम कैसा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होना चाहिए, ना बहुत कम वैल्यू होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकली भी है, क्यों, क्योंकि हमको पता होता है कि अराइवल कब हो रहा है, और टाइम क्वांटम आपने ऐसा सेट कर दिया जिससे ना बहुत ज़्यादा स्विचिंग होगी और रिस्पांस टाइम भी आपका रहेगा। तो उसके बेसिस पर ये है, तो ये प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेड है और इस टाइप से हम ये काम करते हैं। ये पूरा जो सीपीयू शेड्यूलिंग है, ये आपको डिस्क्लेमर पहले भी दिया हुआ है, ये हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम के लिए बात करते हैं। जो हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस डिजाइंड है वो है यूनी प्रोसेसर के लिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैं डॉक्टर के चेंबर में गया, जो मैंने एग्जांपल लिया आपको, तो डॉक्टर क्या है, सिंगल प्रोसेसर है। मल्टीपल अगर आपके चेंबर होते डॉक्टर के तो वहाँ पर मल्टी प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। लेकिन हम यहाँ पर इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस डिजाइन है वो यूनी प्रोसेसर के हिसाब से है, तो हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। अब हमारा लास्ट का जो एल्गोरिथम आता है दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग होता है वो किस कंसेप्ट पे काम करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास में और अचानक से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने यहाँ पर गेट पर आ जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या मैं अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखूँ या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आए तो उसके लिए उनका वेट करूँ। तो उस केस में ये होगा कि अगर उनको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है तो मुझे अपना जो टीचिंग है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, यानी फिर क्या हुआ, आपका प्रियम्पशन हुआ। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पर आपने असाइन किया तो उसमें दो मोड पे काम करता है, एक प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग होता है, नॉन प्रियम्पटिव होता है। तो आपने प्रायोरिटी के बेसिस पर दोनों केस में काम कर सकते हैं। आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, और नॉन प्रियम्पशन के केस में क्या होगा कि जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक वो टर्मिनेट ना हो। और प्रियम्पटिव के केस में क्या होगा कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ गई तो उस केस में प्रियम्पशन हो जाएगा। तो वो हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल से आप इसको अलग अलग टाइम क्वांटम से राउंड रॉबिन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आपको ध्यान रखना है रेडी क्यू बनाना है, अगर आपने रेडी क्यू नहीं बनाई तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है आपका 1 2 3 4 4 5 6 7 0 1 2 4 प्रायोरिटी बाकी है। अराइवल टाइम 0 1 2 4, बस टाइम 4 5 4 2 1, और यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी क्या बोल रही है, 4 5 6 और 7। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें हमें अलग से ये प्रायोरिटी का आईडी है वो नहीं होता। प्रायोरिटी आईडी क्या होता है कि ये शो करता है कि कोई प्रोसेस का प्रायोरिटी क्या। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है इस कॉलम में 4 5 6 7। यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है हायर नंबर है उनका क्या है और लोअर नंबर का क्या है। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि लोअर द नंबर इज लोअर प्रायोरिटी, हायर द नंबर इज हायर प्रायोरिटी। मतलब जिसकी प्रायोरिटी हायर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी लो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों मोड में काम करता है। मैंने जैसे बताया आपको प्रियम्पटिव मोड में भी काम करता है और नॉन प्रियम्पटिव मोड में भी काम करता है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं नॉन प्रियम्पटिव वर्जन। इसका जो क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, प्रायोरिटी। क्राइटेरिया क्या होगा, प्रायोरिटी। और मोड जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होगा, नॉन प्रियम्पशन के लिए बात कर रहे हैं। तो हम इसका गेन चार्ट बनाते हैं। गेन चार्ट में क्या है आपका, सिमुलेशन 0 से स्टार्ट होगा। क्या कोई 0 टाइम पर कोई प्रोसेस आई है, यस, अराइवल ऑफ प्रोसेस P1 का अराइवल हुआ है। क्या उसकी प्रायोरिटी हमको यह चेक करना है, हाँ चेक करना है, लेकिन साथ में आप देखिए कि क्या आपके पास 0 टाइम यूनिट पर एक से ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल है। भले उसका प्रायोरिटी नंबर लो हो हाई हो, पर क्या आपके पास मल्टीपल प्रोसेस अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, नहीं अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, उसी प्रोसेस को अलोकेट करोगे। और चूंकि यहाँ पर जो मोड है वो नो प्रियम्पशन है, तो एक बार वो CPU को अलोकेट होगा तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता वो फिनिश नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया आपने। पहली जो प्रोसेस आई वो P1 है, उसका प्रायोरिटी नंबर 4 है।
तो आपके पास उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं, उसका जो बस टाइम है वो 5 है। तो अगर वो असाइन हुआ है P1 तो 0 पे स्टार्ट हुआ है तो 5 पर एंड होगा। चूंकि नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो यहाँ पर वो प्रीएम्प्ट होगा नहीं, राइट। अब इन 5 ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल क्या हुआ कि आपके पास सभी जो प्रोसेस है उनका अराइवल हो चुका है। यहाँ पर अराइवल टाइम देखें तो आपके पास अराइवल हो गया। सो आउट ऑफ दिस 3 प्रोसेस P2, P3, P4 विच वन इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो हमको कहाँ देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी वाले कॉलम में देखना पड़ेगा। तो 5, 6, 7 किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले ही हम बात कर चुके हैं, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। सो P4 इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो आउट ऑफ दिस 3 प्रोसेस विच वन गेट सिलेक्टेड, द प्रोसेस P4। तो यहाँ पर आपको किसको सिलेक्ट करना है, प्रोसेस P4 को। अगर 5 से स्टार्ट हुआ है तो वो एंड कब होगा, जितना उसका बस टाइम है। बस टाइम कितना है इसका 1, तो 5 पे स्टार्ट हुआ तो 5 + 1 6 पर वो एंड होगा। तो आपकी ये प्रोसेस जो है आपकी ये भी कंप्लीट हो गई और आपका प्रोसेस P1 भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर, 2 processes are there, P2 and P3. Out of these 2 processes, which one is having highest priority? I already said higher the number, higher the priority. P3 is having higher priority. So we'll assign process P3 to CPU. Right. Bus time of P3 is 2. 6 से स्टार्ट हुआ है, 2 एड होगा, 8 पर एंड होगा। तो आपका जो प्रोसेस P3 है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ द ओनली वन प्रोसेस रिमेनिंग दैट इज P2। अगर वो 8 पर स्टार्ट हुआ है और उसका जो बस टाइम है 4 है तो 8 + 4 = 12। सो आपका सिमुलेशन जो है वो 12 पर एंड होगा और ये चारों प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आप यहाँ आपको कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम निकालना है और रिस्पॉन्स टाइम जो आपको कर रहे थे आप। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, पहली प्रोसेस का 5, तो कंप्लीशन P1 का कंप्लीशन टाइम, P2 का कंप्लीशन टाइम 12, क्लियरली विजिबल बाय दिस गैन चार्ट, राइट। P3 का कंप्लीशन टाइम दैट इज 8, P4 का कंप्लीशन टाइम दैट इज 6। टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 5 - 0 इज 5, 12 - 1 is 11, 8 - 2 is 6, 6 - 4 is 2. Waiting time is what? Total time minus bus time. Total time is called turnaround time. So turnaround time minus bus time. So 5 - 5 is 0, 11 - 4 is 7, 6 - 2. 6 - 2 is 4, 2 - 1 is 1. In this way we calculated various waiting time of all this process, and you can similarly you can calculate response time, right? In case of non preemption the waiting time and response time will be same. हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो हमको यहाँ पर अभी कैलकुलेट नहीं करना है। आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, sum of all this and divided by 4. So because there are 4 processes. Similarly in case of average waiting time, sum of all this waiting time and divided by 4. So this is the priority scheduling. Last one is preemptive priority scheduling. The mode is preemption. Selection criteria will be the same, priority, and the mode will be preemptive mode. We will solve same question using preemptive scheduling, right? So at time 0 how many processes are entered into the ready queue? Only one process, P1, right? So there is no way to choose any other process. So from 0 to 1 we will execute process P1। 1 तक ही क्यों, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके कि आपको ये चेक करना है कि अगला सिस्टम में अराइवल कब हो रहा है। अगला अराइवल जो हो रहा है वो 1 टाइम यूनिट पर हो रहा है। तो एट द टाइम यूनिट 1 हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर। तो अगर इसका 5 बस टाइम था तो अब इसका जो रिमेनिंग टाइम होगा वो 4 होगा, राइट। सो एट टाइम यूनिट 1 हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन द सिस्टम। सो प्रोसेस P1 इज देयर एंड प्रोसेस P2 इज देयर, राइट। The priority of process is 4 and priority of P2 is 5. Clearly the selection criteria is priority. Higher the number, higher the priority. So the selection of process P2 will be there. So process P2 will be selected, and how many time it will selected till the next arrival. So 2.
राइट। सो P2 का जो बस टाइम है 4, एक टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो ये कितना होगा 3। सो एट टाइम यूनिट 2 हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन द सिस्टम? द प्रोसेसेस आर 3, P1, P2 and P3, right? So there are 3 processes in the system. Out of these 3 processes, how many which one is having the highest priority? Clearly seen by this example, process P3 is having highest priority. So कौन सा प्रोसेस सिलेक्ट होगा? P3। कितनी टाइम यूनिट के लिए? जब तक अगला अराइवल नहीं आता है। तो नेक्स्ट अराइवल क्या होगा आपका? 4 टाइम यूनिट पर होगा, राइट। तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हम इसको 4 टाइम यूनिट के लिए इसको चला देंगे, 2 टाइम यूनिट के लिए। तो आपका इसका प्रोसेस P3 है, इसका बस टाइम 2 था तो ये कंप्लीट हो गया। P3 जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई एट टाइम यूनिट 4। टाइम यूनिट 4 पर आपके पास कितनी प्रोसेस अवेलेबल है सिस्टम में? हाउ मेनी प्रोसेसेस आर अवेलेबल? P1 अवेलेबल, P2 अवेलेबल, P3 completed and P4 available, right? So out of these 3 process, which one is having highest priority? किसका highest priority है? आप यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी वाले एट्रीब्यूट में आपके पास जो P4 प्रोसेस है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो P4 का जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है सो सिलेक्शन विल बी P4। P4 का जो सिलेक्शन होगा उसका जो बस टाइम हो कितने टाइम यूनिट के लिए? 1 टाइम यूनिट के लिए। इसके बाद किसी का अराइवल हो रहा है क्या? किसी का भी अराइवल नहीं हो रहा है। तो आपका ये प्रोसेस होगा और आपका ये जो प्रोसेस है ये भी कंप्लीट हो गया, 1 का 0, राइट। सो एट टाइम यूनिट 5 हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन द सिस्टम? ओनली P1 एंड P2। सो आउट ऑफ दिस 3 प्रोसेस P2 इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, द 5। सो क्या हम इसको अब एक यूनिट के लिए चलाएं? हम देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास कोई अराइवल नहीं हो रहा है और अब 2 प्रोसेस है, उसमें से एक प्रोसेस का हाईएस्ट प्रायोरिटी है और एक का उससे लो प्रायोरिटी है। तो हमें हमेशा यही होगा कि हर टाइम यूनिट पर जो प्रोसेस है हाईएस्ट जिसका प्रायोरिटी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो आप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी प्रोसेस को? P2 को। तो एंड कब होगा? जब उसका बस टाइम कितना? 3 टाइम यूनिट। तो 5 से स्टार्ट है, 5 + 3 8, तो ये 8 तक एग्जीक्यूट होगा। आपका जो प्रोसेस है P2 वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सिंगल प्रोसेस अवेलेबल दैट इज P1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। 8 से स्टार्ट हुआ, चूंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस नहीं है तो आपके पास सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक प्रोसेस है तो वो प्रोसेस P1 सिलेक्ट होगा। बस टाइम इसका कितना है? रिमेनिंग बस टाइम 4। तो अगर 8 पे स्टार्ट हुआ तो ये एंड कब होगा? 12 पर एंड होगा। सो इन दिस वे ऑल प्रोसेस गेट कंप्लीटेड, राइट। सो वी एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसेसेस based on the priority and mode is preemptive scheduling. So completion time will be the completion time of P1 is 12. The completion time of P2 is occurrence हमको देखना लास्ट occurrence, लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी occurrence है P2 का तो आपका इसका जो completion time है that is 8. Similarly for completion time of P3 is 4. Similarly, completion time of P4 is 5. Turnaround time is completion time minus arrival time. So 12 minus 0 is 0. 8 minus 1 is 7. 4 minus 2 is 2. 5 minus 4 is 1. This is the turnaround time. Similarly, waiting time is what? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। जो भी टोटल टाइम है उसमें से आप क्या करोगे? जितना बस टाइम है जितना सर्विस टाइम है उसको माइनस कर लोगे। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ध्यान रखना है आपको जो एक्चुअल टाइम था उसी को माइनस करना है। सो टर्न अराउंड टाइम आपका कितना है? आपका ऐसा आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट। सो इन दिस वे ऑल द प्रायोरिटी एल्गोरिथम आर डन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप इसको अलग अलग जो गेट में क्वेश्चंस आए आप उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके जो आंसर आएंगे उसके बेसिस पर हम उसको एनालिसिस करेंगे और बाकी हम अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।